کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ دروازہ بنایا گیا تھا تو یہ دروازہ اتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا کہ اس میں سے محض ایک شخص ہی گزر پاتا تھا، اور وہ بھی سر جھکا کے۔ اس وقت جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں، اس گلی کے اندر کسی دور میں یہ گیٹ ہوا کرتا تھا، جس مقام سے محمود غزنوی کی فوج نے دیوار کے اندر شگاف کیا اور پھر وال سٹی کے اندر داخل ہوئے، وہ یہ موری گیٹ ہی کا علاقہ اور یہی جگہ تھی۔ تو بڑی مشہور فلم ہے جو کہ ہم سب لوگوں کو بڑی پسند آئی اور بڑا زبردست اس نے پاکستان میں بزنس کیا تھا، بول مووی کی جو شوٹنگ ہے وہ اسی نونہال سنگھ حویلی کے اندر ہوئی تھی۔ بڑے مزیدار چنے ہوتے ہیں، ٹپیکل لاہوری سٹائل میں بنائے جاتے ہیں۔ صبح صبح اگر آپ یہاں پہ جائیں تو ایک چھوٹا سا ٹھیلا ہے، زیادہ کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں ہے، اسی پہ وہ لگاتے ہیں اور اسی پہ وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ دکان والا بھی لاہور کے اندر پیڑوں والی لسی بناتا ہے اور بہت زبردست بناتا ہے۔ ناظرین، کسی بندے نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ موری گیٹ کے اندر اگر آپ ادھر سے ٹرائی کریں تو آپ لازمی اسے انجوائے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگومنٹری اور ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان سعد زاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈورز آف لاہور کی سیریز کنٹینیو ہے اور آج ہم اس پہلے دروازے کا ذکر کرنے لگے ہیں ناظرین، جو کہ اپنا وجود کھو بیٹھا ہے۔ اس سے پہلے تک جتنی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ان میں آپ کو ان دروازوں کی سیر کروائی جو اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ آج جس دروازے کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا بھاٹی گیٹ اور اس کے بعد لوہاری گیٹ، یہ بھاٹی اور لوہاری کے درمیان کسی وقت واقع ہوا کرتا تھا۔ جس دروازے کی میں بات کرنے لگا ہوں، اس دروازے کا نام موری گیٹ ہے۔ ناظرین، موری گیٹ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے نام کی انتخاب کی وجہ جو ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے وہ اس کا چھوٹا سائز ہونا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت یہ دروازہ بنایا گیا تھا تو یہ دروازہ اتنا چھوٹا ہوا کرتا تھا کہ اس میں سے محض ایک شخص ہی گزر پاتا تھا، اور وہ بھی سر جھکا کے۔ نام کے انتخاب کی جو وجہ ہے اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ اسے موری گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پنجابی میں جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو موری چھوٹے سوراخ کو کہتے ہیں۔ اس چھوٹے سوراخ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ادھار لیتے ہوئے یہ لفظ نکالا گیا اور اسی نام کی مناسبت سے اس گیٹ کا نام موری گیٹ رکھا گیا۔ اس وقت جو آپ گلی دیکھ رہے ہیں، اس گلی کے اندر کسی دور میں یہ گیٹ ہوا کرتا تھا، جس طرح کے باقی گیٹ موجود ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس کا کوئی یہاں پر نام و نشان نظر نہیں آتا۔ ایک محلہ ہے، ایک گلی ہے، اسٹریٹ وے جو آپ کو لے کے جاتی ہے۔ موری گیٹ تباہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی باقیات، اس کی کوئی معاملات ابھی یہاں پر بالکل بھی نظر نہیں آتے۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کی کتابوں کی بات کریں اور لاہور کے اوپر تاریخ لکھنے والے مورخین کی بات کریں تو ان میں سے اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اس موری گیٹ کو ایز اے گیٹ، ایز اے آپ دروازہ کہہ سکتے ہیں، کنسیڈر ہی نہیں کیا، کیونکہ دروازے کے جو خد و خال ہوتے ہیں اور جو کمپیریٹیولی آپ باقی لوگوں کے معاملات دیکھیں اور باقی دروازوں کے معاملات دیکھیں، ان میں سے کسی بھی اصول کے اوپر یہ دروازہ پورا نہیں اترتا تھا۔ اسی لیے اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ لاہور کے 12 دروازے ہوا کرتے تھے جبکہ ایک موری ہوا کرتی تھی، لیکن بعض مورخین ایسے بھی ہیں جو کہ اس کو بھی ایز اے گیٹ ہی کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کے مطابق لاہور کے کل 13 دروازے ہوا کرتے تھے۔ اب ناظرین، آپ کو تاریخ میں لے کر جاتا ہوں اور تاریخ میں جو اس دروازے کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہم سیدھا چلتے ہیں آج سے کافی سال پہلے، کافی 100 سال پہلے، سیدھا دہلی سلطنت کے اندر۔ اگر دہلی سلطنت کی بات کریں تو کنہیا لال کی کتاب تاریخ لاہور کے مطابق محمود غزنوی نے جب لاہور پر حملہ کیا اور لاہور کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو جو راجہ جے پال تھا، جو لاہور کا حاکم تھا، اس نے لاہور کے تمام دروازے جو اس وقت بھی بہرحال کسی نہ کسی صورت موجود ہوا کرتے تھے انہیں بند کر دیا، انہیں کلوزڈ کر دیا اور ایک محصور جو ہے اس کی شکل اختیار کر لی۔ کافی عرصے تک یہ لڑائی چلتی رہی اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ راجہ جے پال کسی نہ کسی طرح شہر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی رعایا بہرحال وہاں پر موجود رہتی ہے اور مسلسل لڑتی رہتی ہے۔ محمود غزنوی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ شہر کے اندر داخل ہو سکے، لیکن وہ ایسا کرنے میں مسلسل ناکام ہوتا ہے۔ کنہیا لال کے مطابق جس مقام سے محمود غزنوی کی فوج نے دیوار کے اندر شگاف کیا اور پھر وال سٹی کے اندر داخل ہوئے، وہ یہ موری گیٹ ہی کا علاقہ اور یہی جگہ تھی۔
इसी जगह से महमूद गजनवी की फ़ौज शहर के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद वो शहर को फ़तह करते हैं और फ़तह करके हाकिम एक फ़ातह की हैसियत से वो इस शहर से बाहर निकलता है महमूद गजनवी और यहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसने अपना एक नुमाइंदा लाहौर भेजा जिसका नाम अहमद अयाज़ है और अहमद अयाज़ का मकबरा लाहौर के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक उसका यहाँ पर आ रहा है, इसे भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। बहरहाल आपको वापस उस मोरी गेट की तरफ लेकर आते हैं। जब राजा जयपाल और महमूद गजनवी की जंग के नतीजे में जो शहर तबाह हो गया था उसे अहमद अयाज़ ने रीबिल्ड करना शुरू किया। तो इसी मुकाम पर जहाँ पे ये मोरी गेट है, जहाँ से फसील को तोड़कर रास्ता बनाया गया था, वहाँ पर निशानी के तौर पर उसने एक छोटा सा गेट बना दिया। गोया आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ही इस जगह पर यह दरवाज़ा बना दिया गया था जो उस वक़्त भी मोरी गेट ही कहलाता था। मे भी नाम कुछ और हो, लेकिन अपने छोटे साइज़ की वजह से उस वक़्त भी वो एक अलग अपनी पहचान रखता था। इसके बाद नाज़रीन हम आते हैं सीधा मुग़ल इरा की तरफ। अगर मुग़ल इरा की बात करें तो मुग़ल शहंशाह पहले हम बात करते हैं बाबर की, जिसको कुछ ही अरसा मिला फ़तह करने के बाद और उसके बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके फ़ौरन बाद ही उसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं को ज़्यादा टाइम नहीं मिला, शेर शाह सूरी आ गया, उसको यहाँ से भगा दिया जब तक कि उसने इस इलाके को दोबारा फ़तह नहीं कर लिया। लेकिन उसके बाद जब हम मुख्तसर करते हैं, शहंशाह अकबर को ये तख्त मिला और बरसगीर का उसे हाकिम बनाया गया, तो उसने इस शहर को दोबारा रीबिल्ड करने का फ़ैसला किया, दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया। और उस वक़्त जो फसील बनाई गई शहर के गिर्द, वहाँ ये बताया जाता है कि इस दरवाज़े की बुनियाद तब वहाँ नहीं रखी गई, यहाँ पर ये छोटा मोरी गेट नहीं बनाया गया था। यानी अकबर के दौर में, मुग़लों के दौर में यहाँ पर कोई गेट एग्जिस्ट नहीं किया करता था। इसके बाद हम सीधा चलते हैं पंजाब की राजधानी की तरफ, यानी सिख राज की तरफ। महाराजा रंजीत सिंह का एक इरा जो बड़ी अहमियत का हामिल था। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में दोबारा उस फसील के अंदर एक शगाफ किया गया और वहाँ पर एक छोटा रास्ता बनाया गया। ये उसी तरह का मोरी गेट जो पहले किसी दौर में बनाया गया था, उसी तरह का एक छोटा सा गेट था, छोटा सा सुराख था जिसमें से बामुश्किल एक ही शख्स गुजरता था। यानी वक्त गुजर गया, हालात बदल गए और मामलात आगे चले गए, लेकिन यहाँ पर मोरी गेट को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया महाराजा रंजीत सिंह के इरा में। इसके बाद हम आते हैं ब्रिटिश राज के अंदर। ब्रिटिश राज के अंदर अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए और उन्होंने जब अंदरून लाहौर के अंदर सफ़र करना होता था, तो उन्होंने अपनी आसानी के लिए, अपने मामलात को ईजी रखने के लिए, अपनी ट्रैवलिंग को आसान रखने के लिए इस मोरी गेट को दोबारा काफ़ी बड़ा किया, काफ़ी वसी जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया। और ये बताया जाता है कि अंग्रेज़ उस दौर में इस दरवाज़े के अंदर से एक ऊँट के साथ या एक गाड़ी के साथ बआसानी गुजर जाया करते थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर बहरहाल अंग्रेज़ों के दौर में जाके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि अब ऑब्वियसली अपना वजूद नहीं रखता। इस दरवाज़े के हवाले से नाज़रीन एक रिवायत मौजूद है, वो ये है कि अंदरून लाहौर के अंदर जो सारा वेस्टेज हुआ करता था, जो सारा फुजला हुआ करता था, जो सारा कचरा हुआ करता था, उसे कलेक्ट करके दरवाज़े से बाहर इसी छोटे मोरी गेट से निकाला जाता था और इसे फिर कहीं दूर लेके जाकर डिस्पोज ऑफ किया जाता था। ये थी नाज़रीन मोरी गेट के हवाले से तफसीलात जो कि आपके साथ शेयर की। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में चलते हैं जहां पर हम आपको इस गेट से मुतालिक कोई तारीख़ी इमारत जो मौजूद हो उसका जिक्र करते हैं। मोरी गेट के अंदर अगर आप आएँ और यहाँ पर अगर आपसे मैं शेयर करूँ एक ऐसी इमारत जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, खूबसूरत है, तो उस इमारत का नाम नौनिहाल सिंह की हवेली है, जिसे विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल में इस वक्त कन्वर्ट किया जा चुका है। लाहौर के अंदर अगर हम बात करें और लाहौर की अंदरून लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो हवेलियाँ जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल होती हैं, उनमें से पहली तो ऑब्वियसली मियाँ सलाहुद्दीन साहब की जो हवेली है बारूद खाना, उसका नाम आता है। और दूसरे नंबर पे जिस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज़्यादा शूटिंग्स होती हैं वो यही कंवल नौनिहाल सिंह की हवेली है जो कि मोरी गेट के अंदर मौजूद है। इससे पहले वाले एपिसोड में जो हमने रोशनाई गेट के ऊपर रिकॉर्ड किया था उसमें आपको कंवल नौनिहाल सिंह की जो डेथ हुई थी उस हवाले से मैंने तमाम तफसीलात शेयर की थी, उसे यहाँ पर लाजमी फॉलो कीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ इस इमारत के ऊपर, इस हवेली के ऊपर भी मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। ये इब्तदाई दिनों की वीडियो है जब मैंने अपने काम का आगाज़ किया था एक्सप्लोरिंग करने के हवाले से। तो मुख्तसर वीडियो है, छोटी वीडियो है, लेकिन बहरहाल उसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है, उसे भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। लाहौर के अंदर अगर हम बात करें शूटिंग के हवाले से इस हवेली की, तो बड़ी मशहूर फ़िल्म है जो कि हम सब लोगों को बड़ी पसंद आई और बड़ा ज़बरदस्त उसने पाकिस्तान में बिज़नेस किया था, बोल।
वॉल मूवी की जो शूटिंग है वो इसी नौनिहाल सिंह हवेली के अंदर हुई थी। मोरी गेट के नाजरीन अगर दूसरी कोई इमारत की बात करें तो इमारत तो नहीं है, बहरहाल इस मोरी गेट के बिल्कुल ऑपोजिट सामने वाली साइड पे एक बहुत बड़ा बाज़ार है जिसे हम उर्दू बाज़ार कहते हैं। लाहौर के रहने वाले और पाकिस्तान के इवन रहने वाले तमाम ही लोग इस बाज़ार को ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जो बाहर रहते हैं, इंडिया से फॉलो करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि ये पाकिस्तान के बड़े बाज़ारों में से एक है जहाँ पर स्टेशनरी का सामान मिलता है। सर्दियों में नाज़रीन मोरी गेट ही के ऑपोजिट रोड की दूसरी जानिब मछली मंडी लगती है और वहाँ पर पूरे लाहौर के जो बासी हैं उन्हें जब सर्दियों में मछली की तलब होती है तो वो इसी जगह से आकर मछली ख़रीदते हैं। आखिर में नाजरीन हम बात करते हैं मोरी गेट के ख्वाबों के हवाले से और जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी उर्दू बाज़ार जहाँ पर हम अभी आपको लेकर फिर रहे हैं, इसी उर्दू बाज़ार के आगाज़ में मोरी गेट के ऑपोजिट सामने वाली साइड पे एक चने लगाते हैं। नाम उनका है सलीम बट चने वाला आप कह सकते हैं, और इनकी स्पेशलिटी जो है वो इनके काली मिर्च वाले चने हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, और इनके जो मटन के साथ चने अगर कभी आप ट्राई करें तो आप यकीनन उसे बड़ा इंजॉय करेंगे। बड़े मज़ेदार चने होते हैं, टिपिकल लाहौरी स्टाइल में बनाए जाते हैं। सुबह सुबह अगर आप यहाँ पे जाएँ तो एक छोटा सा ठेला है, ज़्यादा कोई बड़ा सेटअप नहीं है, उसी पे वो लगाते हैं और उसी पे वो सेल आउट करते हैं। रिकमेंडेड है, कभी इस तरफ जाने का इत्तेफाक हो सुबह सुबह तो इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। दूसरी चीज़ नाज़रीन जो इस हवाले से, जो इस मोरी गेट के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, खाने के हवाले से, पीने के हवाले से, अगर मैं वर्ड बोलता हूँ पेड़ों वाली लस्सी तो आपके ज़हन में हमेशा की तरह रफ़ीक बट की जो लस्सी है जो ग्वाल मंडी के अंदर मौजूद है, जिसे फ़ीका बट भी कहते हैं या फ़ीके की लस्सी भी कहते हैं, उसका आपके ज़हन में एक नक्शा बन जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इसी मोरी गेट के अंदर आगाज़ में थोड़ा सा अगर आप आगे जाएँ और हार्डली मेरा ख्याल है 50-60 मीटर आगे जाएँ तो आपके राइट साइड पे सदीक स्वीट्स के नाम से एक छोटी सी दुकान मौजूद है। ये दुकान वाला भी लाहौर के अंदर पेड़ों वाली लस्सी बनाता है और बहुत ज़बरदस्त बनाता है। नाज़रीन किसी बंदे ने मुझे रिकमेंड किया था कि ये मोरी गेट के अंदर अगर आप इधर से ट्राई करें तो आप लाजमी उसे इंजॉय करेंगे। तो बहरहाल मैं एक दफ़ा वहाँ गया और मैंने उसे इंजॉय किया और मैंने उससे वो बनवाई और उसके बाद वो पी। तो फ़ीका लस्सी वाला जो है या फ़ीके की लस्सी से ये 10,000 गुना बेहतर है। उसमें उसका प्राइस भी उससे कम है, उसका टेस्ट भी उससे ज़्यादा अच्छा है और इवन उसकी क्वांटिटी भी उसकी फ़ीके की लस्सी से ज़्यादा है। तो कभी आपका मोरी गेट में जाने का इत्तेफाक हुआ तो आपने रोड की दूसरी तरफ जो सलीम बट है उसके चने खाने हैं और उसके बाद आपने मोरी गेट के अंदर आना है और यहाँ पर जो सदीक स्वीट्स की पेड़ों वाली लस्सी है उसे लाजमी ट्राई करना है। मस्ट रिकमेंडेड है आपके लिए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का हमेशा की तरह इजहार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साद जाहिद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे एक मरतबा फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।